Children, today we will solve exercise 2.2 NCERT of inverse trigonometric function chapter 2. Okay, so we start with the first question. Question number 1, it is evaluate the following. Question number 1, sine inverse sine 2 pi by 3. We know that sine inverse sin x is equal to x only if minus pi by 2 less than equal to x less than equal to pi by 2. Here 2 pi by 3 does not belong to minus pi by 2 pi by 2. Therefore, sine inverse sine 2 pi by 3 is not equal to 2 pi by 3. Now, sine 2 pi by 3 can be written as sine pi minus pi by 3, which is equal to sine 180 minus theta, that is sine theta, that means sine pi by 3, and pi by 3 is belonging to the interval minus pi by 2 pi by 2. Okay, therefore sine inverse sine 2 pi by 3 is equal to sine inverse sine pi by 3, which is equal to pi by 3. Answer. Very easy. Note it down in your copies. Question number 2, cos inverse cos 13 pi by 6. We know that cos inverse cos x is equal to x only if 0 less than equal to x less than equal to pi. Here 13 pi by 6 does not belong to 0 pi. Therefore, cos inverse cos 13 pi by 6 is not equal to 13 pi by 6. Now, cos 13 pi by 6 can be written as cos 2 pi plus pi by 6. If we take LCM, it will become 6 to the 12, 113 pi by 6. So, this 13 pi by 6 can be written as 2 pi plus pi by 6.
and cos 2 pi plus theta is equal to cos theta, that is cos pi by 6, and pi by 6 belongs to the closed interval 0 pi. Therefore, cos inverse cos 13 pi by 6 is equal to cos inverse cos pi by 6, and which is equal to pi by 6. This is the answer. Write it down, children, in your copy, or take the screenshot. Question number 3. Tan inverse tan 3 pi by 4. Now tan inverse tan x is equal to x only if minus pi by 2 less than x less than pi by 2. Here 3 pi by 4 does not belong to minus pi by 2 pi by 2. Therefore, tan inverse tan 3 pi by 4 does not belong to 3 pi by 4, or is not equal to 3 pi by 4. Now, tan 3 pi by 4 is equal to tan pi minus pi by 4, which is equal to minus tan pi by 4. This is equal to tan minus pi by 4. ओके, माइनस tan थीटा, इसको हम जानते हैं कि tan माइनस थीटा होता है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. और यहाँ 3 पाई बाई 4 है, तो इसको चेंज करना है तो पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जा रहा है 4 माइनस 1 3 पाई बाई 4. यानी कि हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं. यानी हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4, विच इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. इसको ये हमारा आंसर हो गया. नोट डाउन कीजिए अपने कॉपीज़ में. क्वेश्चन नंबर 4. cot tan inverse A plus cot inverse A. ठीक है, फॉर्मूला पे जाएंगे. फॉर्मूला में क्या करना है, we know that अब ये इसका फॉर्मूला क्या होगा,
tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, हम जानते हैं कि ये होता है क्या, पाई बाई 2। इसीलिए अगर कॉट लेंगे, ये क्वेश्चन पे आते हैं, tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए पे आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 क्या होता है, 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। कॉपी करें अपने कॉपीज़ में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ। ठीक है, वी हैव, अब अंदर से चलेंगे, यहाँ पे जो हम लोग निकाले हैं, वी हैव साइन इनवर्स हाफ। हाफ किसका वैल्यू होता है, 0, हाफ मतलब 30 डिग्री, यानी कि पाई बाई 6। ठीक है, अब चलेंगे जो क्वेश्चन था उसके तरफ। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ इज इक्वल टू, क्या हो गया, tan इनवर्स 2 cos, ब्रैकेट में साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू रखेंगे पाई बाई 6। ठीक है, ये हो गया tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3। ठीक है, यानी क्या हो गया, cos पाई बाई 3 का वैल्यू रखेंगे cos 60 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा, हाफ। सबको टेबल याद रखना है, ये फट से वैल्यू रख दिए। tan इनवर्स 1 हो गया, 1 मतलब 45 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया, पाई बाई 4। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ठीक है, 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। लेट sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। मतलब क्या, साइन इनवर्स उधर जाके बन जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 3/5। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमको tan थीटा चाहिए तो वो भी निकल जाएगा। 3 है P और ये है H, मतलब बेस हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग चलते थे उससे निकल रहा है। ये अगर थीटा ले लें और ये हमारा साइन थीटा दिया हुआ है P/H 3 और 5, तो ये ऑब्वियस है कि पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 निकल जाएगा, यानी P/B यानी 3/4। ठीक है, अब tan 2 थीटा हम देखते हैं। tan 2 थीटा के लिए हमारा फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का वैल्यू रखेंगे, क्या है हमारा 3/4, तो 3/4 रखे, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, काटो, ये हो गया 3/2। ठीक है,
बाई 1 माइनस 9/16, यानी क्या हो गया 3/2 बाई ये हो जाएगा 7/16। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा इंटू 16/7, काटेंगे 8 हो गया 24/7। यह आ गया tan 2 थीटा। तो 2 थीटा क्या निकलेगा, देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। और थीटा क्या है हमारा, ये यहाँ से पुट कर देंगे 2 थीटा का वैल्यू यहाँ से लिए, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। नोट करें बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चंस है और बहुत इजी वे में बनेगा। मैं अपने वीडियो में पहले ही इसका सारा फॉर्मूला डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से उसको पढ़ें। और ये हमारा एक्सरसाइज हो गया इस पे, जो कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 6th क्वेश्चन हो गया। अब 7th क्वेश्चन पे आते हैं। Question number 7. Prove that 9π/8 minus 9/4 sine inverse 1/3 is equal to 9/4 sine inverse 2√2/3। ठीक है, ये हमारा 7th क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्व करना है। देखिए ये भी बहुत इजी है। इसमें करना क्या होगा, पहले देखिए LHS से चलते हैं। ठीक है, LHS क्या है, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू, अब देखिए 9/4 हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं 9/4 कॉमन है। इसी पर्पज़ से हम इसको कॉमन ले लेंगे तो यह अंदर में बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, कहाँ से हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब क्या हमको सपोज करना होगा, लेट, अब यहाँ पर आते हैं, इसको फर्दर हमको इसको इस राइट हैंड साइड से मिलाना होगा। तो कॉस इनवर्स 1/3 को हम थीटा ले लेते हैं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो 1/3। अब हमको साइन थीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कि होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1/9 मतलब क्या हो गया 8/9। देयरफॉर साइन थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो रूट ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 2√2/3। ठीक है, यानी क्या हो गया, साइन थीटा इतना आया तो थीटा हम लिख सकते हैं कि आया साइन इनवर्स 2√2/3। ये इम्प्लाई करेगा कि कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर से कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू क्या था, थीटा। और थीटा हमारा क्या आया, यहाँ देखिए थीटा हमारा ये आया, तो थीटा के जगह पे हम लिखेंगे
साइन इनवर्स 2√2/2। Therefore from 1, इसको हम 1 ले लेते हैं, from 1 LHS इक्वल टू 9/4, ठीक है, साइन इनवर्स 2√2/2 इक्वल टू RHS। यही तो प्रूव करना था, हो गया। बहुत ही इजी था, ध्यान से इसको नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। Prove that tan inverse 63/16 is equal to sin inverse 5/13 plus cos inverse 3/5। ठीक है, इसको हमको प्रूफ करना है। ये भी काफ़ी इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें हम इसको अल्फ़ा और इसको बीटा ले लेते हैं तो ईज़िली हो जाएगा। लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू अल्फ़ा। ये इम्प्लाई किया साइन अल्फ़ा इक्वल टू 5/13। देयरफॉर tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये p/h हुआ। अभी हम बताए थे एक और क्वेश्चन में कैसे हम लोग को लेना है, tan निकालना है या कुछ भी निकालना है। तो ये सॉरी थीटा नहीं, यहाँ अल्फ़ा लिया हुआ है। 5 और 13 p और h, ये हो गया p और ये हो गया h। तो मतलब क्या हुआ, बेस निकल जाएगा 12। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू p/b, मतलब 5/12। लेट cos इनवर्स 3/5 is equal to beta. This implies cos beta is equal to 3/5. Therefore, tan beta equal to 4/3। ठीक है, इसमें भी उसी तरह से यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। ये हो गया b/h 3 और 5, तो ऑब्वियस है कि ये 4 हो गया। tan क्या हो जाएगा, p/b परपेंडिकुलर बाई बेस 4/3। देयरफॉर tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ठीक है, वैल्यूज़ रख देंगे यहाँ से 5/12 4/3 बाई 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। बस वैल्यूज़ जो निकाले हैं उसको रख देना है। अब ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग कुछ कैंसिल भी कर सकते हैं, पर 12/3 12 इंटू 3 12 इंटू 3 जो है वो हमारा ये आ जाएगा। तो हम कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख देंगे, इसको सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा 21/12 इंटू 36/16। ठीक है, ये
इसको हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 12 कटेगा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 63/16। यानी क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आया हमारा tan इनवर्स 63/16। अल्फ़ा क्या था, यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू रखेंगे और बीटा का वैल्यू रखेंगे। यानी क्या हुआ, हमारा निकला साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 63/16। प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। एट तक हो गया, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू π/2। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है आपका, ये बिहार बोर्ड 2020 में ये क्वेश्चन NCERT की क्वेश्चन नंबर 9 आई थी, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें। इस तरह का कैसा क्वेश्चन आपका आता है वो मैं बताती चली जाऊंगी, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी वही काम करना होगा, इसको भी कुछ मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं और फिर सम करके π/2 दिखा देना है, कुछ करना नहीं है। इन्वर्स वाले में यही काम ही करना है। लेट साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू पाई, और साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू therefore sin theta equal to 4/5, sin phi is equal to 5/13 और sin psi is equal to 16/65। इतना तो हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें कॉस निकाल, साइन जैसे अभी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकाले थे ना, बिल्कुल उसी तरह से। कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 4/5 है तो ये हो जाएगा 3/5। कॉस फाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये p/b 5/13 है तो ये हो जाएगा हमारा 12/13, ठीक है। b/h और यहाँ पर कॉस साई क्या हो जाएगा 63/65, ठीक है। 16 है p/h तो b/h बेस निकालना था तो ये 63/65 होगा। सारा हमारा पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके ही हमारा वो फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग चले आते हैं नाउ साइन थीटा प्लस फाई, ठीक है। साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला के लिए साइन थीटा प्लस फाई लगाते हैं। ये क्या हो जाता है, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, ठीक है। ये क्या हो गया, साइन थीटा क्या है, देखिए 4/5, वैल्यूज़ रखते जाना है। कॉस फाई क्या है 12/13, कॉस थीटा क्या है 3/5,
और कॉस साइन फाई क्या है, यहाँ से लेंगे 5/13। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 48 + 15 और दोनों का एलसीएम तो वही 65 होगा, तो ये 63/65। ठीक है, और 63/65 किसका वैल्यू आया था, कॉस साई का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस साई। ठीक है, और कॉस को अगर हमको साइन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग जानते हैं कि ये होता है साइन 90 - थीटा। ठीक है, अब आ गया हमारा, यानी थीटा + फाई हमारा आ गया 90 - साई। ये इम्प्लाई करेगा थीटा + फाई + साई इज इक्वल टू π/2। यही तो प्रूफ करना था। थीटा, फाई और साई क्या है, यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ लेंगे, यानी दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 5/13 और साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू π/2। प्रूफ्ड। और यहाँ पे बच्चों अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से आपको एक छोटा छोटा ट्रायंगल बना के यहाँ पे बता दे रहे कैसे पाइथागोरस थ्योरम दी। 4/5 साइन है, मतलब P/H, तो परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, तो हमको कॉस के लिए बेस चाहिए, तो बेस तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। अगर ये थीटा लेंगे तो 3, इसीलिए ये कॉस थीटा आ गया 3/5। उसी तरह से बाकी दोनों आप कर लेंगे, बहुत ही इजी है। नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। tan inverse 1/√x² - 1। ठीक है, mod x ग्रेटर दैन 1। इसको हमको क्वेश्चन है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देती हूँ, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, वी पुट, क्या करना है, x को sec थीटा रखते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। पुट x इज इक्वल टू sec थीटा, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए, देन tan इनवर्स 1/√x² - 1, x की जगह हमको जो रखना है वो रिप्लेस करते हैं, 1/√sec² थीटा -1, और ये हो गया tan इनवर्स 1/√sec² थीटा -1, मतलब tan² थीटा। ठीक है, tan² थीटा हो गया, ये हो गया tan इनवर्स 1/√, हटाएंगे तो बन जाएगा tan थीटा, और tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा किसका रेसिप्रोकल है, cot थीटा का, और cot को हमको tan में बदलना है, तो ये हो जाएगा क्या, tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा cot थीटा होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा π/2 - थीटा, और ये क्या हो गया, π/2 -
थीटा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, एक्स बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे रीज़न में दे सकते हैं सिंस एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। tan इनवर्स 3a² माइनस एक्स क्यूब बाई a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, a ग्रेटर देन 0। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, माइनस a बाई रूट 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू a बाई रूट 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब यहाँ फॉर्मूला देखिए मिल रहा है, 3 tan इनवर्स x वाले फॉर्मूला से मिलता जुलता लग रहा है, तो हम क्यों नहीं उसी से ट्राई करें। वी हैव 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, वेयर माइनस 1 बाई रूट 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 बाई रूट 3। नाउ tan इनवर्स, ये जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं, 3a² माइनस एक्स क्यूब बाई a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a क्यूब से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर a क्यूब पे डिवाइड करने पे कुछ सिंपल आ जाएगा। क्या आएगा, tan इनवर्स, यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं, 3x बाई a माइनस x बाई a होल क्यूब बाई 1 माइनस 3x बाई a होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडिंग क्या किए हैं यहाँ पे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई a क्यूब। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन इसका क्या हो गया। अब हम इसको कुछ रख देते हैं, x बाई a को y पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 3y माइनस वाई क्यूब बाई 1 माइनस 3y स्क्वायर। जो किए हैं वो लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू एक्स बाई a, यानी क्या हो गया, ये 3 tan इनवर्स y का फॉर्मूला आ गया, वेयर माइनस 1 बाई रूट 3 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1 बाई रूट 3। ठीक है, वापस हम y का वैल्यू डालते हैं, क्या था, x बाई a, वेयर माइनस 1 बाई रूट 3 लेस देन इक्वल टू x बाई a लेस देन इक्वल टू 1 बाई रूट 3। ठीक है, यानी क्या हो गया, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। इसको हम a को इधर भी ला सकते हैं, इसको एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस a बाई रूट 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a बाई रूट 3। बस a को इधर और इधर ले आए। ठीक है, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट होगा,
क्वेश्चन नंबर 12 उस पे आते हैं। इक्वेशन फॉर्म में है, ठीक है। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इनवर्स फंक्शन। Question number 12. Solve 2 tan inverse cos x is equal to tan inverse 2 cos x। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में है, इसको सॉल्व करके हमको x का वैल्यू निकालना है। अब चलते हैं, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगेगा यहाँ पे? इस इक्वेशन से ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज tan 2 tan इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स tan इनवर्स 2 cos x, 2 tan इनवर्स x मतलब 2 cos x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x। ये दिया हुआ है क्या? tan इनवर्स 2 cos x। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x बन जाएगा sin स्क्वायर x। ये tan इनवर्स 2 cos x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स दोनों साइड है तो उसको हम हटा देते हैं। बचा क्या? 2 cos x बाई sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos x। अब हम क्या देख रहे हैं? ये 2 को हम हटा देते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी cos x बराबर हमारा आ गया cos x इंटू साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसको एक ही साइड में ले जाते हैं तो cos x माइनस cos x इंटू साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आते हैं, थोड़ा ही सा है तो इधर हम आपको बता दे रहे हैं, इसको कंटिन्यू करके cos x हम कॉमन ले रहे हैं तो बचा क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर x भी क्या होता है? cos स्क्वायर x होता है। ठीक है, यानी क्या आ गया हमारा? cos क्यूब x इज इक्वल टू 0, मतलब हो गया कि cos x 0 आ गया। ठीक है, अब ये जनरल वैल्यू के क्वेश्चन से चलेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, जनरल वैल्यू लिए। ठीक है, एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं क्लास 11th के, तो ये हमारा सॉल्यूशन। यहाँ से ये कंटिन्यूड यहाँ पे है, नोट डाउन कर लें। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। अब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 की बात करेंगे, जो कि मैं अगले दिन सॉल्व करूँगी। आई होप आपको मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताया है ताकि आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझ में आए। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई BA tutorial and also write your comments in the comment box, and if you have any problem you can write that also. I am trying to solve each and every question in a very easy way so that each and every student can follow the answers. Thank you.